कि इसकी यार ये को होती है व्हाइट कलर की, यहाँ लगता है कान से लटकाने वाला, वो कल मैंने इधर कहीं देखा है पड़ा हुआ। हेलो 1 2 3, हेलो 1 2 3। लगा नहीं यार कैमरा, पीछे से आना इसका स्विच। हाँ आ गया, सही है, आ गया। इसका रिमोट देखो किधर है। So we talked about this input and output port design. So today we are going to talk about a configurable port. A configurable port basically needs two ports. One port is a regular port for input and output, and the other port is to set the behavior of the first port. Basically, it tells the first port how to behave. And so one port, how to behave, every bit of the configure, it is basically bit decibel or bit configurable. So that means every bit can be separately configured. So what happens is that in the IO part of the processor on the port side, we have both buffer and a register. So what do we want is that when we make a port as an output port, we want to act as a register. And when we want to make it as an input port, we want to act as a buffer. Remember, output port के लिए register use करते हैं, input port के लिए buffer use करते हैं. So both hardwares are there. So there is a redundant hardware. And the second port is the configuration port that tells the actual IO port how to behave as a register or as a buffer. So whatever you write to configure port decides the status of the second port. So this is called the control port. Sometimes it is called the control port. So if I write, for example, configure port A 0FFF, then all of them will be an output port. Sorry, input port. So the configure port is called the TRIS A port. And if I set configure port equal to 00, configure port underscore X, Y, A, B, C, then that will be act as an output port. So these are actual PIC port addresses that are used. These are all 12-bit port addresses that are used in PIC for everything. So for example, port address is FATH. So if I don't want to use the word port A in my C file, I can directly write to this pointer FATH. So
The processor will generate this address, this variable address, and whatever is the value that I write to that address will be written to port A. So that's how these names are, uh, related to each other. So similarly, if you look at this, port A also has a configuration port, which is F92H. So F92H is the tri-state setting of the port A. So they are two related, port A and port 92. The third thing that is there, that is latch port F89. That's the third register that is there. Um, so basically, what you can call that it is a shadow register for F80 port. Is a shadow register. So whatever you write on port A is written to latch A also. But latch A is read writable. If you write to port A, whatever you had written, you cannot read it back because that is not an input port. So if you want to read it back to what I had written, the same thing that you write to port A is also written to latch A port. लता, ये लता वो नहीं है, लता गाने वाली है, हाँ लता. So same is written to lata. So if you want to say port A is equal to 0xFF, and you later on you kind of forget, or you want to read the port A, then you will read from latch A, not port A. And so whatever you written is so I will not touch upon this latch A and how is that made in the hardware because that would be simple. Let's see how these configurable ports are made. So this is for each and every bit. Port is only for writing. If it is in output mode, then you can only write to this port. So latch A is both readable and writable. So whatever you write to port A is also written to latch A. So if you down the line in your program, if you want to you forget what you had written to port A, you can make sure that you have the right value what you had written on port A. You read from latch A. So latch A is both readable and writable. Port A is only writable when it is configured as a register. When it is configured as a buffer, then you cannot use latch circuit because then latch circuit is not, don't care. So, so here you can see that we have one such circuit connected to every port bit. It can be D0, D1, D2, D3. So one such circuit is connected to every bit of the port. So if I set tris is a tri-state buffer controller. If I set tris to 0, what will happen? If I set tris to 0, this buffer will be open circuit. Nothing can go inside over here. And this 0 means this will be 1. This will be short circuit. So this register will come into play. So the word outside will now see the IO port pin will see what is written on register on the register. So basically, you either can open circuit this buffer or you can open circuit this.
When this is open circuit, this is short circuit. When this is open circuit, this is short circuit. And now if I want to use this port as an input port, this is the port bit, that is port A bit 0. So when I read from port A, and if it is in the input mode, then this buffer is activated. This is open circuit. This output written to this register will not come back. Now the IO port is, this is like this circuit going outside. This is what actual circuit will be. If I set this to 1, this equal to 1, the only circuit that remains is this circuit. The lower circuit, 1-bit register, and this tri-state buffer, they are not, they are open circuit, so this register is out of the circuit. Now if I have output pin, if I have set anything like 0 or 5 volt, that will go through here, and they will connect to D0. And from there, I can read it. As you can see here D0 is bidirectional, bit in arrow in both direction. Here it goes in this direction because we cannot read from the register. And here it comes out of the tri-state buffer because we cannot write to the tri-state buffer. So basically, it is a, you know, full duplex to half duplex, जिस तरह you can say in communication terms कि यहाँ पर तो सिग्नल दोनों डायरेक्शन में आ सकता था, लेकिन जब ये ट्राई स्टेट बफर इसको सेट कर लेता है तो ये यहाँ से जा सकता है, और अगर इसको बंद किया हुआ तो फिर यहाँ से आ सकता है। जाहिर है दोनों डायरेक्शन में एक वक्त में सिग्नल नहीं जा सकता। So that's how you fit. And so this is the doubleization, as we had done, always done, the double of this 1-bit port. So this is a enable pin. If it is 0, this will act as a, this circuit will operate, otherwise it will never operate. The whole input and output sequence is open circuit. But when it enable is 1, when it depends on the tris pin. If it is 0, then it will act as an output port. And when it is, if it is 1, then it will act as an input port. So this is the configuration that is set inside a configurable port. So this is repeated for every pin. So there are about 30 IO pins, 32 IO pins in PIC processor, more than that. So all of them are settable using TRIS register, whether they want to be input or output. So this is how the whole circuit will then look like. So this for a configurable port A, we have a state catcher for F93, which is the TRIS A address. So when I say TRIS A and write something, this AND gate catches that. And whatever is at that point, whatever is written on the data bus, it is written into this register, because this register clock becomes enabled. Similarly, over here, now once I have to set this first. This is step 1, which port I want to use as an input, and which once I have done that, outside the super loop, I have set what registers to be, what bits to be connected as input and what as an output. Then I can feel free to write to the port or read from the port. So when I want to write to the port, I will write to port A. That is translated to F80 address. So this is an AND gate that catches that F80. When F80 processor is writing to variable F80, pointer F80, there is no memory there except latch.
लैच का अभी मैं बात नहीं करना चाहता, क्योंकि वो भी एक्टिवेट हो जाता है, उस पर भी डाटा कॉपी हो जाता है। तो बेसिकली लैच जो है ना वो शेडो है आपके पोर्ट ए एड्रेस का। So when you read from this port A F80, or this write to this is activated. Now this has no AND gate or OR gate, as you can see. Nothing IO write, ये both direction में ये हमेशा अवेलेबल होता है। तो इट डिपेंड्स ऑन के जब ये इनेबल होता है तो ये वाली पोर्ट जो है सारे जो है ना बफर्स इनेबल हो जाते हैं। अब आप जब रीड करते हैं तो जाहिर है कि वो जो इनपुट के लिए सेट हुए होते हैं ट्राई स्टेट बफर, वो भी वाला डाटा जो है वो इस बस से कनेक्ट होता है इससे, और इससे यहाँ से होके वो प्रोसेसर से चला जाता है। जो जो इनमें से आपने जो ट्राई स्टेट डबल सर्किट जो है, इसको डबल सर्किट कह सकते हैं, ये डबल सर्किट इनमें से जो भी एज एन आउटपुट सेट हुआ है, रीड करने पे वो डोंट केयर हो जाता है। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस। So you don't have to have an AND gate here because this is an IO port A, but this port sets this, कि इसको किस तरह से यूज करना सर है। डोंट केयर वाली बात दोबारा बता दें सर एक बार। डोंट केयर वाली बात ये है कि डोंट केयर वाला सीन ये है कि अस्सलाम वालेकुम सर। परशुराम, सर मुझे बस ये कहना था कि अगर आप इंस्टेड ऑफ यूजिंग स्लाइड्स, अगर जैसे डीएलसी में लेक्चर लेते थे वाइट बोर्ड पर, अगर आप उस तरह कर दें तो शायद ज़्यादा अच्छा समझ आता था डीएलसी में। हाँ बात तो ठीक है, वैसे आपकी बात ठीक है। क्योंकि स्लाइड से थोड़ा लाइक स्लाइड से इतना अच्छा मुझे तो समझ नहीं आता। आई लाइक टू डू दैट, लेकिन फिर आपके लोग जो है ना वो कमेंट लिख देते हैं कि सर स्लाइड्स नहीं बनाते। सर एक क्वेश्चन है सर। क्यों, आपका क्या ख्याल है, मैं सर्किट पे बनाया करूं या स्लाइड पे? मुझे दोनों में कोई मसला नहीं है। आई लव मेकिंग सर्किट्स रादर देन मेकिंग स्लाइड्स। सर फोर्ड पे बना दिया करें, वो ज्यादा बेहतर है। राइट। सो सर हाँ जी, पूछें भाई, तो कौन है ये? ये सर जैसे मेरा नाम हसन है सर। मैं कह रहा था कि ये जो आपने कुछ स्लाइड दिखाई थी इसमें सर ये जो एंड गेट्स हैं ये हम क्यों लगा रहे हैं एक इस पे, एक इनपुट पे? एंड गेट पिछला लेक्चर पढ़ा है आपने? जी सर। उसमें हमने एंड गेट नहीं लगाए थे पोर्ट को कैच करने के लिए? जी सर वो लगाए थे, लेकिन सर वो ये समझ नहीं आ रही कि सर वो हमने एंड गेट लगा तो दिए थे, लेकिन आगे हमने रीड राइट वाली बात में समझ आ गई कि हम जो है ट्राई स्टेट बफर और क्या कहते हैं उसको एक्टिवेट करते हैं, या तो हम ट्राई स्टेट बफर एक्टिवेट करते हैं या फिर हम रजिस्टर एक्टिवेट करते हैं, लेकिन जो हाँ, एक इनपुट उस पे हमने एंड जो लगाया वो चीज समझ नहीं आ रही। जो पोर्ट डेस्क कैच करने के लिए एंड गेट लगाया हुआ है, या जो ट्रिस पे की इनपुट पे एंड गेट लगाया हुआ है, उसकी बात करें आप? सर जब ये आपने अभी स्लाइड लगाई हुई थी ना, इसमें जो आपने एंड गेट लगाए हुए थे वो। दोबारा इधर आना पड़ेगा। चलो कोई नहीं, अब ये करना तो पड़ेगा। एक देखे ना ये वाली स्लाइड। जी सर, इसमें जो है ये एड बस जो है लिखी हुई है ADD बस, इसमें ये एंड गेट्स क्यों है आई ऑफ F93 और F80 पे? हाँ जी, F93। अच्छा, ये देखे ना यहाँ पर जो है ट्रिस ए का क्या एड्रेस था? F92H। हाँ, F92H का क्या मतलब है?
सर हेक्स में है ये। हेक्स में, वेरी गुड यार, लाइक है आप। थैंक यू सर। अच्छा, यहाँ पे F92 नहीं आना था, F92 आना चाहिए था, क्योंकि ट्विस्ट एक है, F92 है, ये मैं ठीक कर दूंगा, वो ट्विस्ट वीक है F93, ये F92। अच्छा आपने बताया कि ये गलत है। तो ये F92 जो है ना, ये इसका ट्विस्ट एक एड्रेस है, और F80 किसका है, ये एक्चुअल पोर्ट एक एड्रेस है जिसपे हम रीड या राइट करते हैं। तो F92 यहाँ पे आना चाहिए था F92, और यहाँ पे आना चाहिए था F80, तो ये मैं ठीक करता हूँ। तो F92 क्या होता है कि यही मैं अभी बताने जा रहा था कि किस तरह से ये वर्क करता है, अभी ये बताता हूँ आपको कि बेसिकली, किधर हूं मैं, इधर हूं, जी हाँ। सो बेसिकली वी हैव अ प्रोसेसर, it has a data, it has a ROM pointer, जो रैम पॉइंटर, रैम एड्रेस जो हमने देखा था कि वो 12 बिट का रैम एड्रेस होता है। तो 12 बिट का रैम एड्रेस है। तो प्रोसेसर कहता है, आप कहते हैं, आपने प्रोग्राम लिखा पोर्ट ए इज इक्वल टू 0xAA, या चलें अभी FF कर लेते हैं, नजर आ रहा है, ठीक है। आपने तो ये लिखा, जब इसको कंपाइलर ने कंपाइल किया तो उसने पोर्ट ए को जो है ना वो किया, क्या कहते हैं, एक लफ्ज यूज होता है, मेरे देन में नहीं आ रहा, कि पोर्ट ए को उसने डिफाइन, डेफिनेशन इसकी पकड़ी, और इसका इसका नंबर पकड़ा। वो प्रोसेसर की हेडर फाइल में होता है कि पोर्ट ए जो इस प्रोसेसर में है वो लगी हुई है F80 पे लगी हुई है। तो उसको इसने समझा कि मैं ये वाला इस मेमोरी रैम के इस मेमोरी एड्रेस पे मैं क्या राइट करना चाह रहा हूं, 0xFF। तो जब ये राइट प्रोसीजर है ना कि डाटा इधर से इधर जा रहा है, तो जब मैंने राइट करना है तो वो क्या करेगा, इसको क्या करेगा, वो जो इसकी ये वाली एड्रेस है उस पे वो देगा F80, जो रैम का एड्रेस है, रैम एड्रेस, तो भाई इस डाटा से रीड करना है मैंने, सॉरी राइट करना है। और डाटा बस पे क्या देगा, डाटा बस पे क्या देगा, FF, ये आपकी डाटा बस है, इसमें वो देगा FF, ये एड्रेस पॉइंटर, ये उसके उस पे जो वैल्यू राइट करनी है। अब यहां पर इसमें प्रोसेसर में इस रैम एड्रेस के ऊपर कोई एक्चुअल रैम नहीं बन लगी हुई, यहाँ पर एक्चुअली वो आपका पोर्ट की हार्डवेयर लगी हुई है। तो इस एड्रेस को पकड़ने के लिए हमें एक स्टेट कैचर चाहिए कि जब ये एड्रेस आए तो वो उसको पकड़ ले, मतलब उसकी आउटपुट 1 हो जाए। तो जहां भी कोड में ये लिखा होएगा पोर्ट ए इज इक्वल टू समथिंग, ये 1 हो जाएगी। तो इसको हम कहते हैं आईओ एड्रेस F80। अब जब मैं आउटपुट कर रहा हूं तो अगर तो यहाँ पर रजिस्टर लगा हुआ है, ये इसकी आधे क्लॉक यूज होगी, और ये वाला डाटा जो इस रजिस्टर में राइट हो जाएगा। तो हम कहेंगे जी हमने पोर्ट ए जो कि आउटसाइड वर्ड से कनेक्टेड है, हम कहेंगे कि इसके ऊपर हमने 0xFF राइट कर दिया है। तो यहाँ पे अगर आप पिनों पे मीटर से चेक करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, सारे हाई मिले। So this is if there is a, this is when the port is just output configured at output port. So ये वाला सर्किट वो है जो कि उसको कैच करता है, दिस इज स्टेट कैचर फॉर दिस एड्रेस। समझ आ गई अब आपको? हाँ जी, कोई है, अब समझ आ गई है? कौन थे यार वो, क्या हसन नवाज?
जी सर समझ आ गई सर। हाँ, तो उसके बाद अगर तो ये बताना ना हो कि ये अगर तो इसको हमने आयो पोर्ट बनाना है तो फिर तो हम इसको रीड स्लैश राइट से एंड करते हैं कि रीड करते वक्त इस पे कुछ ना राइट हो, फिर जब राइट करें तो तभी ये राइट हो, तो रीड राइट का साथ उसको एंड कर देते हैं। तो अगर रीड राइट के साथ एंड करें तो फिर ये चेंज हो जाता है। इसको अगर आपने रीड राइट के साथ एंड कर दिया ऐसे करके, बबल लगाया यहाँ पे, तो फिर ये आउटपुट बन जाती है। क्योंकि जब ये 0 होगा, बबल के बाद ये 1 होगा, तो ये एड्रेस भी आएगा, तो ये एक्टिवेट होगी। ये लास्ट टाइम हमने किया था ये सारा। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स एज ए क्लॉक। So coming back to that twist-based circuit, twist-based circuit, twist-B is just controls the behavior of the port B. Or twist-A controls the behavior of port A. So how is that done? That all the port A has duplicate hardware. It has registers and it has buffers. So it has registers and it has buffers, both of them. This is register, D input, clock, output, D flip flop. That is the output circuit. And it has a tri-state buffer input also. That's the enable circuit. Now, they are both behaving the same. The twist, what it does is that is also a D flip flop. So when I write to twist port twist A पोर्ट पे राइट करता हूं, तो D0 बिट जो है वो इस पे राइट होती है। और ट्रिस ए का अलग से, ट्रिस ए का एड्रेस है F90 F90 है, कितना है देखें जरा, किसी के पास नोट किया हुआ है जो स्लाइड में था? हाँ भाई, है किसी के पास नोट किया हुआ? ट्रिस ए का क्या एड्रेस है? F92 I think so. F91। तो जब मैं F91 पे राइट करता हूं तो इसके ऊपर जो डाटा होता है ना D0 पे, मैं कहता हूं ट्रिस A इक्वल टू 0xA C फर्ज करें, which is basically what I'm saying is that tris A is equal to 11001100, which is C. तो बाइनरी में ये बनता है। इसका क्या मतलब है कि मैं चाहता हूं कि ये वाली बिट जो है ये एज एन इनपुट यूज हो, इन इन आउट आउट इन इन। तो बोर्ड के मैं 2 बिट्स इनपुट के लिए यूज करना चाहता हूँ, 2 बिट आउटपुट के लिए यूज करना चाहता हूँ। मेरी हार्डवेयर रिक्वायरमेंट ये है। जो चीजें गाइड करती हैं, डिक्टेट करती हैं, जो आपकी डिजाइन को जो ना कंट्रोल करती हैं, वो तो आपकी हार्डवेयर है जो आपने इसके साथ अटैच करनी है।
तो स्टार्टिंग पॉइंट तो वो होता है कि मैंने कितने इनपुट लगानी है, कितनी आउटपुट लगानी है अपने सिस्टम में। वहां से आपकी पोर्ट्स की रिक्वायरमेंट आती है आपके पास। फिर आप देखिए इनमें कितनी इनपुट्स हैं और इनमें से कितनी आउटपुट्स हैं। तो इन फिर आप चेक करते हैं कि कितनी इनपुट्स हैं, कितनी आउटपुट्स हैं और किसके साथ क्या लगाना। फिर आप हार्डवेयर में जाके उनको कॉन्फ़िगर करते हैं कि कौन सी अदर इनपुट होनी चाहिए, कौन सी अदर आउटपुट होनी चाहिए सॉफ्टवेयर में जाके। सो डिजाइन डिक्टेटेड बाय योर एक्चुअल प्रोजेक्ट दैट यू आर वर्किंग ऑन, दैट इज द गाय हु डिसाइड्स कि क्या होना है। तो आपकी जो पर्टिकुलर डिजाइन है उसमें ये है कि मुझे चाहिए 2 इनपुट आउटपुट चाहिए, 2 इनपुट चाहिए, 2 आउटपुट चाहिए, 2 इनपुट चाहिए। बाकी सारी पोर्ट्स जो है ना वो मुझे जो है ना डिजाइनर ने जिसने भी प्रोजेक्ट बनाया उसने कहना नहीं, और बाकी पोर्ट्स नहीं आपने यूज करनी। वो हमने उसका सर्किट में बनाया ही नहीं हुआ, हार्डवेयर पीसीबी पे उसको कनेक्ट नहीं किया हुआ कहीं। तो उदाहरण है वो इनसे भी काम चलाना है। मैं एक प्रैक्टिकल सिनेरियो आपको बना के आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उस केस में आप जो है ना वो ये वाली चीज राइट कर देते हैं पोर्ट ए, ट्रिस ए पे। जब आप ट्रिस ए पे राइट करते हैं तो ये बिट क्या है, D0 है 0। तो ट्रिस ए पे जब आप राइट करते हैं तो बेसिकली वो राइट होता है F9 1 पे। इस एड्रेस पे राइट होता है। जब इस पे राइट होता है ना तो वो जो ऊपर वाला एंड गेट है ना आपकी डायग्राम में देखें वो एक्टिवेट होता है। वो एक्टिवेट होता है तो ऊपर एक जो रजिस्टर बना हुआ है इस तरह से करके, ये ट्रिस रजिस्टर, ये डाटा उसमें राइट हो जाता है। अब ट्रेस रजिस्टर के अंदर एक D0 है। इस रजिस्टर में एक अगर मैं सिर्फ रजिस्टर का एक फ्लिप फ्लॉप पकड़ूं तो वो ये वाला D0। तो जब मैं ये इंस्ट्रक्शन देता हूं तो D0 के ऊपर 0 राइट होगा, ये 0। जब ये 0 राइट होगा तो मैंने ये काम किया हुआ है कि यहाँ पे एक इस डायरेक्शन को मूव करके बफर लगाया हुआ है, दूसरा एक इस डायरेक्शन को मूव करके बफर लगाया हुआ, यहाँ पे बबल। तो जब भैया आप प्लीज बता देंगे आपने ये क्या किया है? मैंने ये किया कि जब ये वाली हार्डवेयर है ट्रिस से, इसमें जब मैं D0 राइट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा 0। आई वांट कि या तो डी फ्लिप फ्लॉप चले या ट्राई स्टेट बफर चले। जब मैंने आपको याद होगा जब हम सिंपल इनपुट पोर्ट बनाते थे तो बफर लगाते थे, जब हम आउटपुट पोर्ट बनाते तो फ्लिप फ्लॉप लगाते। जी अब आप ये कहेंगे कि हम पहले क्यों नहीं डिसाइड कर लेते एक प्रोसेसर में कि ये वाली पोर्ट हमेशा इनपुट होंगी, ये वाली हमेशा आउटपुट होंगी। तो वो ऐसे नहीं चलता काम, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन इंपॉर्टेंट है आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से। अगर आपका एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें आपको 32 इनपुट्स चाहिए फर्ज करें, तो आप 2 रजिस्टर 2 माइक्रो कंट्रोलर तो नहीं लगा सकते ना। तो कॉन्फ़िगरेबल बनाने से ये है कि आप अपनी जो है ना बहुत ज्यादा आपका जो है वो कस्टमाइजेबल सिस्टम बन जाता है कि आप इसको कस्टमाइज कर सकें अकॉर्डिंग टू द नीड। और पोर्ट की पिने रिस्ट्रिक्टेड है। मैक्सिमम एक DIP जो है डिप पैकेज जो है ये वाला आपका, ये 40 पिन से बड़ा नहीं हो सकता। ये जो आपका IC है ये 40 पिन से बड़ा नहीं हो सकता। दूसरे पैकेज बड़े भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सारे माइक्रो कंट्रोलर हैं उनमें ये होता है कि आप उनको उनकी कस्टमाइजेशन रखें ताकि आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी रहे। फ्लेक्सिबिलिटी इज द वर्ड, राइट। सो इसमें ये है
कि यहाँ पे जब मैं ये डेटा 0 राइट करूंगा तो क्या होगा, इस ट्राई स्टेट बफर को क्या होगा। Sorry. इस ट्राई स्टेट बफर को क्या होगा, जब ये ट्राई स्टेट बफर यही होता है ना, आपने पढ़ा है कि जब ये यहाँ पे 0 आएगा तो ये ट्राई स्टेट बफर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, अनेबल, ये इसकी इनेबल है। तो ये ट्राई स्टेट बफर जो है ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। जब ये शॉर्ट सर्किट होगा तो इसका क्या, और ये वाला क्या हो जाएगा, ये ओपन सर्किट हो जाएगा। तो ये इक्विवेलेंट इसका सर्किट जो बनेगा वो ये बनेगा, ये वाला बस। क्योंकि सर कैमरा थोड़ा जूम आउट कर दे, नीचे से नजर नहीं आ रहा। हाँ हाँ मैं कर रहा हूँ, सॉरी। ये नजर आ रहा है अब? जी सर। कंट्रोल कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव है। तो चले, so this is whole circuit is like this. Port A dot bit 0, so it becomes an output port. This is out of the circuit. Because when this is 0, this is whole line, so this whole of this circuit is out of the question. So what remains is just D flip flop. So anything now, this is a D0 pin. So anything I write here cannot go in this direction. It goes in this direction. This it written here 0 or 1. जो भी मैंने write किया है उस पोर्ट पे, और it is appears over here. तो आप देखेंगे कि जब मैं ये वाला राइट करता हूं तो आपके पास ये बिट 0 डी फ्लिप फ्लॉप बन जाती है, ये वाली पिन भी पोर्ट भी एक ही फ्लिप फ्लॉप बन जाती है, ये वाली पिन ट्राई स्टेट बफर बन जाती है, ये वाली पिन ट्राई स्टेट बफर बन जाती है, और ये वाले फ्लिप फ्लॉप बफर बफर। सही, आपने क्रॉसेस क्यों बनाए हैं बता देंगे दोबारा प्लीज। क्या ये आपने क्रॉसेस क्यों बनाए हैं? क्रॉसेस क्यों बनाए हैं, देखो ना यार, जब ये 0 है तो इस ट्राई स्टेट बफर को क्या, ट्राई स्टेट बफर की साइकोलॉजी समझे। जब मैं 0 लगाता हूं तो ट्राई स्टेट बफर को क्या होगा। अच्छा जी सर, आपने जीरो कंडीशन के लिए बनाया है कि इसमें ये हाँ ये 0 कंडीशन के लिए बनाए हैं ना ये वाले, ठीक। क्योंकि D0 ये 0 दी हुई है मैंने, D0, this is D0, that this is D0 when I am writing to this port, please say. So basically when I write 0 a,
0xA to tris B register. ट्रिस ए पे जब मैं रखता हूँ ट्रिस ए इज इक्वल टू 0xAA, तो इस रजिस्टर में लिखा जाता है 0 0 1 1 0 0 1 1। उससे क्या होता है कि जो आपके पोर्ट की बी की हार्डवेयर है उसमें यहां पे क्या आ जाता है, एक रजिस्टर आ जाता है, यहां पे भी एक रजिस्टर आ जाता है, यहां पे भी एक ट्राई स्टेट बफर आ जाता है। यहां पे भी एक ट्राई स्टेट बफर आ जाता है। यहां पे एक रजिस्टर एंड सो ऑन। ये ट्रिस सर्किट ट्रिस। तो इस तरह से ये भी एक और डी फ्लिप फ्लॉप, एक और दो और ट्राई स्टेट बफर, तो इस तरह से बन जाते हैं। ये आपकी D0, D1, D2, D3 एंड D4, D5। ये आपकी पोर्ट भी ये बन गई है, इसकी हार्डवेयर लाइक ए कमिलियन। जैसे एक कमिलियन का जो है वो कलर चेंज होता रहता है, एग्जैक्टली उसी तरह से आपकी पोर्ट की हार्डवेयर चेंज हो सकती है। तो वो अब इस तरह से लगेगी। अब अगर मैं जब पोर्ट ए पे लिखूंगा कोई चीज, इफ आई से पोर्ट ए इज इक्वल टू समथिंग, अब इधर से मैं राइट कर रहा हूं पोर्ट ए पे कुछ कुछ राइट कर रहा हूं पोर्ट ए पे, पोर्ट ए इज इक्वल टू 0x99। तो वो जो 99 में राइट कर रहा हूं वो जो है उसमें से D0 जो है 99 में विच इज 1, वो यहाँ पे सेट हो जाएगी। 99 में D1 है 0, ये वो इसमें सेट हो जाएगी, इस पे राइट हो जाएगी। इस तरह यहाँ पे जो है ना, मैं अब ट्राई स्टेट बफर पे राइट करने की कोशिश कर रहा हूं तो वो डोंट केयर हो जाए, उस पर कुछ नहीं राइट हो सकता। आप ही बताएं इसको मैं डाटा देख के राइट कैसे कर सकता हूँ। D4 क्या है इस केस में 1, वो इस पे राइट हो जाएगी। D5 क्या है 0, वो इस पे राइट हो जाएगी। जहां पे इनपुट आउटपुट सर्किट लगा है वो तो एक्सेप्ट कर लेगा। इसी तरह अगर मैं कहता हूं x इज इक्वल टू पोर्ट ए, तो उस वक्त ये डी फ्लिप फ्लॉप की इनपुट से तो डोंट केयर वैल्यू आएगी, ये वाली वैल्यूज आपको मिलेंगी। तो आपको जो पोर्ट ए से x में वैल्यू मिलेगी व्हेन आई सेट दिस, तो पोर्ट ए में जो x से वैल्यू मिलेंगी वो होंगी डोंट केयर। D2 पे क्या है, वो आउटसाइड वर्ड पे जो भी आपने लगा हुआ है वो मिलेगा आपको। वैल्यू 1, वैल्यू 2 डोंट केयर, वैल्यू 3, वैल्यू 4। इफ आई मेक यहाँ पर हमने सॉरी T को हमने किया था CC। So you can see here कि only these values are bits are valuable, these are don't care, because we are trying to read from a bit which is set as a D flip flop। मेरा इतना इसके ऊपर काफी है।
तो F92H है उसका एड्रेस, सॉरी, ठीक है। तो अब मेरा ख्याल इस ये एक सर्किट जो है ना हार्डवेयर के अंदर ही शिफ्ट हो जाता है, करवट बदल लेता है सर्किट। सर थोड़ा सा कैमरा शिफ्ट कर दीजिएगा, लेफ्ट पे भी और थोड़ा नीचे भी। जल गया कैमरे का कंट्रोल। नीचे कुछ नहीं है। So this is how it behaves. तो बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका है इसमें। इसके बाद फिर एक और भी ट्राई स्टेट वाला सीन आ जाता है, जिससे ये सारी पोर्ट ट्राई स्टेट हो जाती है, और जो भी आपकी आउटपुट्स होती हैं वो किसी और सर्किट से कनेक्ट हो जाती हैं। तो काफी कॉम्प्लेक्स सर्किट है आपकी। एक एक पोर्ट का बड़ा पूरे पेज का सर्किट है हर पोर्ट का। हमने अभी इसको दो चीजें ही उसमें से पढ़ी हैं, टिस ए। अभी तो उसमें और भी चीजें हो सकती हैं। यही पोर्ट एज ए सीरियल कम्युनिकेशन के लिए भी यूज हो सकती है, यही पोर्ट जो एनालॉग इनपुट के लिए भी यूज हो सकती है। तो ट्राई स्टेट बफर्स आर एवरीवेयर, वो कोई सर्किट बीच में कनेक्ट हो जाता है, या कोई ट्रिस से तो हम ये कर सकते हैं, पोर्ट को एज ए फ्लिप फ्लॉप यूज कर सकते हैं, दोनों नहीं इकट्ठे यूज हो सकते। कोई हार्डवेयर आप माइक्रो कंट्रोलर से ऐसे नहीं लगा सकते जो कि इनपुट भी देती है और आउटपुट भी लेती है, ना ही कोई ऐसी हार्डवेयर होती है। सिवाय अगर आप कोई स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल सीरियल कम्युनिकेशन का यूज करें, उसमें आप एक उसमें भी फिर होता है कि एक जो पिन है वो ट्रांसमिशन लाइन बन जाती है TX, एक पिन जो है वो रिसीव लाइन बन जाती है RX। तो एक ही पे TX/RX नहीं हो सकता। तो very rarely you will see any port being used as an input and output. Mostly, you know, as far as this course is concerned, you will see that the port is either used as a flip-flop, the pin or at the output is either used as an flip-flop or as a buffer. And the trace port is only register port, on which you can only write. You cannot read. You only write. And whatever you have written decides what is going to be the behavior of the port associated with this port. So every port has its neighbor, its brother, your sister. Every output port has a sister port, which is this port. So they both go hand in hand. If you don't configure, you can see as a default, they are probably output. So, it is sometimes you can make all the output, even if you are not using them. Sometimes you can make all the output as an input port and using fixed port, and you can set the values to that port as 00, so that no extra LEDs are turned on your distribution board. कोई LEDs खामखा ना जले। तो शुरू में आप एक स्टैंडर्ड तरीका रखें कि सारी पोर्ट्स को आप आउटपुट पोर्ट करें, ट्रिस A is equal to 0, ट्रिस B is equal to 0, ट्रिस C is equal to 0, और वो वाली पोर्ट जो आपने यूज करनी है उसको आप सेट कर लें, बाकी सबको 0 करें, और उनके बाद पोर्ट A is equal to 0, पोर्ट B is equal to 0, पोर्ट C is equal to 0 करें, ताकि एनी पोर्ट दैट एक्स्ट्रा LEDs ऑन ना करें। व्हाई डू यू वांट टू टर्न ऑन द LEDs? दैट विल टेक अप द पावर दैट इज प्रोवाइडेड बाय द प्रोसेसर। प्रोसेसर हीट अप होगा और खराब हो जाएगा। तो आप खामखा, ये इंजीनियर हैं आप लोग, तो आप लोग अपनी चीजों की हिफाजत करें, उनको यू नो अपने जो आपके है चीजें जो हैं, जो भी आपके हार्डवेयर है, उनको उनकी हिफाजत करें, उनको गले से लगाना सीखें,
तो ऐसे नहीं है, खामखा ना खराब किया करें अपनी चीजों को. सो make them don't care, sorry, zero, and write all the ports zero so that no extra LEDs are turned down for no reason. ठीक है. So this is what is called, let me share the screen again and see if I have left something. So set, why do we need two ports for a configurable port? Configuration port नहीं लिखना था. Why do we need two ports for a configurable port? एक पोर्ट बताती है कि हमने दूसरी पोर्ट को किस तरह से बिहेव करना है. And that is usually true in all the IO devices in the world. You have one port, few ports that are command ports or control ports. उनका डाटा जो है ना यूजर उस पर रीड राइट नहीं कर सकता, वो जो है सिस्टम सेट करता है. एंड देन देयर आर डाटा पोर्ट्स that are used for input and output. आप प्रिंटर ले लें, आप स्कैनर ले लें, कोई भी चीज जो आपके कंप्यूटर से लगेगी वो थ्रू पोर्ट ही कनेक्ट होगी. हर एक का अपना पोर्ट एड्रेस होगा, जो कि मैंने आपको दिखाया भी था. तो ये आपका सेल्फ टेस्ट है, इसको करके देखें आप. कुछ चीजें जो है ना आपको, आपने जब आप भी अपने कंप्यूटर की हार्डवेयर बनानी है तो ये थोड़ी सी चीजें आपने नोट करना है कि when you want to input something through a switch to the processor, ये वाला स्विच है, तो आपने एक रेजिस्टेंस लगाना है 10K का. ये प्रोसेसर की इनपुट पोर्ट है जहाँ पे बफर लगा हुआ है, क्योंकि आपने उस वक्त ये इनपुट कर रहे हैं तो एज ए बफर बिहेव कर रही होगी. तो आपने 10K का रजिस्टर लगाना है, क्योंकि when you close this switch, this power supply does not short circuit with the ground. When this switch is closed, effectively what we are getting here is ground. When you open the switch, there is no current in this circuit, so no voltage draw across this resistance. So what you get here is power supply voltage. The voltage taken up by the input circuit is very small. तो इसको जो जब इस तरह का लगाएं, इसको कहते हैं, इसका एक खास नाम होता है, इसको कहते हैं पुल अप रेजिस्टेंस. पुल अप इसलिए कि जब ये ओपन होता है तो ये वाली हैंगिंग ही नहीं रहती, ये वाली कनेक्ट हो जाती है इस पावर सप्लाई के साथ. ओपन नहीं रखना, हैंगिंग ही नहीं रखना. आप कहें मैं खाली लगा देता हूं तो स्विच इस तरह से रजिस्टर नहीं लगाता. जब क्लोज होगा तो जीरो तो हो जाएगा, जब ये ओपन होगा तो फिर इनपुट क्या होगी? When the switch is open, what will be the input if you don't have a resistance connected to the ground? It is floating. So floating input काबिल इतबार नहीं होती. You cannot trust a floating input. Similarly is the case, you will find this also in many circuits. This is called pull down circuit. So pull down means that when this is open circuit, you have a 0 volt through this resistance. So it is tied to ground through the resistance. It is not hanging in the air. It is not loose in the air. So when the switch is closed, however, then this power supply is felt by this buffer over here. So these resistances are very important. Usually we use 10K. Similarly, if we want to use an LED at the output, we need to use a resistance. Directly हम LED connect कर सकते. As we saw in the DLC, हमने देखा था कि कितनी रेजिस्टेंस लगानी चाहिए. LED का क्रॉस ड्रॉप होता है 1.2 वोल्ट. उससे ज्यादा ड्रॉप होगा तो LED सड़ जाएगा, या करंट इतनी होगी कि आपका ये वाला जो आपका डी फ्लिप फ्लॉप का है आउटपुट जो है वो खराब हो जाएगी. क्योंकि जब आउटपुट के तौर पर यूज कर रहे हैं तो बेसिकली ये बफर जो है ये डी फ्लिप फ्लॉप की आपकी आउटपुट है, जो कि बफर एक्टिवेट हो गया.
अब आप बताएंगे कि कितनी रेजिस्टेंस होनी चाहिए, आप खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं कि +5 वोल्ट यहाँ पे आए और 1.2 वोल्ट वहां पे आए तो इस रेजिस्टेंस में, और द वोल्टेज इन अ डायोड ऑन डायोड शुड बी, द करंट इज अराउंड अबाउट 20 मिलियन पेयर। तो आप उससे कैलकुलेट कर सकते हैं 20 मिलियन पेयर करंट हेयर, 1.2 वोल्ट ड्रॉप हेयर, सो व्हाट शुड बी दिस रेजिस्टेंस। आपने जब तो अपने काफी सर्किट्स के कोर्सेज पढ़ लिए हैं, तो यू शुड बी एबल टू हैंडल दैट। So this is when the IC is supplying the current to light up this LED. So we say that this is the LED is a current source mode. The IC is sourcing the current to light up the LED. So when this output is 1, LED will turn on. When this output is 0, LED will be off. The other mode is what we call syncing mode. In that case, LED is connected in this configuration. In that case, when this output is 0, only then current flows from here into the IC. IC can handle more current coming from the outside world than it can handle the current needed for the outside world. So ये वाली करंट जो IC यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है, ये करंट IC के ऊपर बर्डन है, जबकि यहाँ पे जो IC है, ये IC पे बर्डन नहीं, IC तो जूस पी रहा है, यहाँ पे IC जो है वो जूस पिला रहा है। फर्क देखें जरा, एलईडी को जूस पिला रहा है ये आईसी, यहाँ पे एलईडी को जूस, आईसी जूस पी रहा है और एलईडी इस करंट से ऑन हो रहा है। जाहिर है थोड़ा सा गिव एंड टेक तो करना पड़ता है। गिवन क्या है कि यहाँ पे 1 करें तो एलईडी ऑन, विच मेक सेंस, लेकिन यहाँ पे व्हेन वी मेक 0 देन द एलईडी इज ऑन। तो आपको एक मेंटल इन्वर्टर आ जाता है बीच में कि आज जब मैंने एलईडी ऑन करना है 0 करना है, जब मैंने एलईडी ऑफ करना है 1। So this is the current casing. Well, this is the complete circuit of the port, where you can see everything is tri-state buffers are there. Lots of tri-state buffers are there. Uh, is this just for single one bit? This circuit is just for single bit. तो इसको कुछ तो हमने इसका पढ़ लिया, बाकी हम फिर कभी पढ़ेंगे कि किस तरह से कभी ये फ्लिप फ्लॉप बन जाता है आउटपुट पोर्ट, कभी ये ट्राई स्टेट बफर बन जाती है और इनपुट यहाँ से आ जाती है। तो बोथ आर पॉसिबल। कंप्लीट सर्किट इज ऑल ऑफ दिस। और I think that's just about for today's lecture. So if we have any questions, please do ask. हाँ जी, go on. Questions. असना, अहमद, इमरान नहीं। अहमद आज आप चुप हैं यार। अहमद, इमरान, why are you so quiet? अभी इधर है भी हैं या भागे हैं? Okay, if there are no more questions, we can end this meeting. मारिया एंड कर दे मीटिंग। सर आप होस्ट हैं, आप कर सकते हैं एंड। अच्छा, चलो मैं अभी करता हूँ। अभी देखते हैं कोई क्वेश्चन पूछने वाला हो तो पूछ ले।
हमारे सिर्फ मैं ही मीटिंग एंड कर सकता हूँ। राइट, मुनीबा आपने कुछ पूछना है? आपका हाथ खड़ा है। क्वेश्चन अबाउट ऑसिलोस्कोप। हाँ जी, व्हाट इज द क्वेश्चन जो विषय? ऑसिलोस्कोप में 2 पोर्ट्स तो बने हैं, एक पावर के लिए और दूसरा वो ऑसिलोस्कोप के वो प्रोब के लिए। तो 2 और वायर्स भी साथ में कनेक्ट हुई हुई, एक पिंक वाली वायर और एक वाइट सी छोटी सी वायर। ये दोनों किस लिए हैं सर? जो व्हाइट वाली वायर है ना, दैट इज देयर टू उस पे ना ऑसिलोस्कोप में एक हाईली एक्यूरेट 1 किलोहर्ट्ज का स्क्वायर वेव है। सर वो कैसे देंगे? वो आपने लेना है, वो बनी हुई है उसके अंदर। हर ऑसिलोस्कोप के अंदर आपने देखा होगा, लैब में भी जो ऑसिलोस्कोप है उनके नीचे एक जगह पे 1 किलोहर्ट्ज का लगा हुआ है। आपने प्रोब उसके साथ लगाते हैं और उसके बाद आप अपने अपने उस पे चेक करते हैं कि क्या वो उसको उसका टाइम पीरियड 1 मिली सेकेंड आ रहा है, फ्रीक्वेंसी 1 किलोहर्ट्ज आ रही है। अगर नहीं आ रही तो इसका मतलब आपका ऑसिलोस्कोप जो है ना वो सेल्फ कैलिब्रेटिंग के लिए। इफ यू आर नॉट गेटिंग, उस पे आपने प्रोब लगाई तो उससे आपको जो प्रोब पे सिग्नल आना चाहिए वो 1 किलोहर्ट्ज का आना चाहिए। अगर 1 किलोहर्ट्ज से ऊपर नीचे आ रहा है ना, दैट मीन योर ऑसिलोस्कोप की जो है ना वो कैलिब्रेशन खराब हो गई। मुझे कोई कहेगा ना कि भाई देखो भाई ये मैंने आप ये वाला ऑसिलोस्कोप चेक करो, तो मैं क्या करूंगा, आप सिग्नल जनरेटर के लैदा से यूज करूंगा, उसके ऊपर एग्जैक्ट 1 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी करूंगा। उसके बाद ऑसिलोस्कोप पे उसको देखूंगा कि ये एग्जैक्ट 1 किलोहर्ट्ज की आ रही है कि नहीं। अब इसमें हमारे पास सिग्नल जनरेटर तो हम दे नहीं सकते लैदा से, तो इसमें उन्होंने खुद ही एक वन ऑसिलोस्कोप वालों ने एक 1 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी सेट की हुई है that you can use to calibrate your circuit। वो उसका बाकी सिलोस्कोप के सर्किट से कोई ताल्लुक नहीं है। वो एक स्क्वायर वेव ऑसिलेटर लगा हुआ है, उसके अंदर एग्जैक्ट 1 किलो क्रिस्टल बेस्ड 1 किलोहर्ट्ज स्क्वायर वेव ऑसिलेटर। आप उसको यूज भी कर सकते हैं। आपने कहीं सर्किट में कहीं 1 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी कल यूज करनी हो, आपके पास फंक्शन जनरेटर तो नहीं है, आपने कहीं 1 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी यूज करनी है, तो आप वो आउटपुट ऑसिलोस्कोप की यूज कर सकते हैं। सर ये वन लास्ट थिंग के ये वाइट वाली वायर किस लिए? हाँ, ये व्हाइट वाली इसीलिए है, और रेड जो पिंक वाली है वो है ग्राउंड। तो आपने ऑसिलोस्कोप को ग्राउंड करेंगे तो आप बाकी चीजों के साथ उसको कनेक्ट कर सकेंगे। यस सर, ठीक है। जिस सर्किट की आपने मेजरमेंट करनी है, अगर उस पे ग्राउंड लगाना मुश्किल हो रहा है तो ये पिंक वाली वायर से आप उसको ग्राउंड करें। इज जस्ट एन एक्स्ट्रा ग्राउंड फॉर कन्वीनियंस। ठीक है, बाकी ये भी आपका अगला सर्किट है, लैब है होगी ऑसिलोस्कोप पे, तो यू कैन यूज इट देन। जमशेद, आर यू देयर? यस सर। हाँ, अच्छा, आपसे ही बात हो रही थी। ठीक है, ठीक है। यार वहां से पता नहीं लगता कौन बोल रहा है, तो तस्वीर आप लोग की आ नहीं होती तो अंदाजा ही करना पड़ता है कि हाँ ये फलां बंदा होगा, ये फलां बंदा होगा। तो अभी तक लैब्स कैसी जा रही हैं आप लोगों की? सर दोनों लैब्स बड़ी अच्छी गई हैं। कैसा लग रहा है आपको? वो यार मैंने आपको मैसेज भी किया था, कुछ आप लोग तस्वीरें भेज दें। वो मेरा तो इतना शौक नहीं है कि इस तरह के, आई एम वेरी शाय ऑफ दिस पब्लिसिटी। और लेकिन वो डीन भी कह रहे थे कि यार ये करवा लो, एक यूनिवर्सिटी के लिए की अच्छी नेकनामी के लिए अच्छा है कि ये काम हो जाए। तो आप लोग अगर कोई तस्वीर भेज सकते हैं, इस तरह सामने सर्किट रखा हो, काम कर रहा हो, एक किसी को कहें अच्छे कैमरे से एक तस्वीर खींच के भेज दे, और आपके पेरेंट्स भी आपको देखते होंगे कि आप यू आर डूइंग समथिंग। हुदा, आपको बात आ रही है? आपको अपने पेरेंट्स से पूछें कि उनको कैसा लगा है कि ये जो लम्स ने स्टेप लिए हैं। सारे मैंने लम्स से पूछ के ही सब कुछ किया है कि आपके घर में ये इस तरह से एक लैब सेटअप कर दी जाए। तो आपके पेरेंट्स तो खुश होंगे कि भाई ये क्या, इतना बच्चों को हम पे करते हैं एजुकेशन का, तो दिस वाज द मिनिमम
minimum that university could do. ठीक है जी, तो आप लोग इस पे जरा गौर करें और मुझे कुछ तस्वीरें वगैरह भेजें प्लीज, मैं उनको दे, या आप डायरेक्ट भेज सकते हैं, मैं आपको एड्रेस भेज दूंगा। आपको अगर मुझे भेजते हुए शर्म आती है, विच इज नेचुरल, लोग मेरे से बड़ा शर्माते हैं, तो मैं आपको एड्रेस भेज दूंगा। जो है ना, हानीन है एक कम्युनिकेशन की कंटेंट राइटर है एक लम्स की, उनको आप डायरेक्ट भी भेज सकते हैं तस्वीरें वगैरह, तो प्लीज भेजें। ठीक है, मैं आपको आज ही उनका एड्रेस भेज देता हूँ। ओके, एंड करते हैं, फिर बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी और सेव करना मुश्किल हो जाएगा। हाँ जी सर, वो ट्रैफिक लाइट्स वाले सिस्टम की वर्किंग के कोई 15-20 सेकंड का क्लिप भेज सकते? हाँ, वो मैं भेजता हूँ यार, वो मैंने भी सोचा था कि होना चाहिए, वो मैं भेजता हूँ। सर वो आप सब लोगों ने गलत बनाया है, आपने मुझे भेजना है। यस सर। हाँ वो भेजें यार, टाइम कम करें ना, मैंने कहा था उसका टाइम कम करें, 0.5 सेकंड रखें येलो लाइट का, 1 सेकंड रखें रेड लाइट का, वो वेट ना करना पड़े लोगों को वीडियो देखने के लिए, उससे भी समझ आ जाती है कि ट्रैफिक लाइट चल रही है। ठीक है, ठीक है, यस सर। ओके, थैंक यू जमशेद, थैंक यू वेरी मच। ओके, अल्लाह हाफिज, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, don't do anything I wouldn't do,